Hello, my magnificent kids. Okay, welcome to Edu Achievers. In today's class, our video, I'm going to continue with the chapter Metals and Non-Metals of class 8th, and we'll study these topics, that uses of metals, non-metals, water alloys, what is corrosion, what is rusting और corrosion में difference क्या है, metals, non-metals हमारी life में कहाँ use होते हैं, और alloys क्या हैं, और कौन से alloys हैं जो हम use करते हैं हमारी life में. So we're going to continue with the topic, this one, fine. Before that, let's begin with the positive thought, which says that life is a learning process. I truly believe in this, and over the time you will also understand it. Okay, that means we have to learn throughout our life something new every day from everyone. I have tried to learn and hope you will also learn something good from everyone. Okay, continue with the topic. First we are going to discuss the uses of common metals. कि common metals के use कहाँ हमारी life में common metals. There are many metals, but we are going to talk about the common metals. Common metals में सबसे पहले commonly use जो हम जब भी में fever आता है, mercury thermometer which we use. That means mercury is a metal, and you are aware that it is a metal which is liquid state, and that is used in thermometers. Fine. Second, gallium is also used in thermometer, which is also a metal. Fine. And nowadays, we discussed last class that gallium is a non-toxic metal, so it is preferred over mercury. Second one, the most common ones, the aluminium, copper, irons, and steel, which is alloy. These are used in our daily life in cooking vessels. Most of our kitchen wares are made up of one of these. Fine. We are packing our food in the aluminium foil, so that is also one of the use of aluminium metal. Fine. We have the aluminium tint shades over some of the houses. We have frames of some of the aluminium things. Fine. And iron grills, window panes, frame. So these are so many things. Even in construction, you can see so much of metal being used. Iron rods are used. Fine. So we have a lot of metal which is being used in our daily life. Fine. Along with that, yes, now comes the gold, platinum, silver. Fine. You all are aware that everybody loves these metal. Okay, and we discussed last time, what is the one which makes us fall in love with this? Is the luster, the shine among these metals. Fine. And the shine which attracts us, and because of that, not only women, the men, so, and not the present one. From the civilizations, from the thousands of years back, people started using these metals to make jewelry, and they used to very fondly wear these. Fine. So these ones are used in making jewelry. The next one can be the tin containers. You would have seen, most fondly we eat the rasgullas. Those rasgullas, if you would have seen, they comes in a tin container. So tin containers are used in packing those food items, and like if those are non-vegetarian, sometimes some of the fishes, some of the non-veg varieties, they also come in the tin pack. Normally we Indians don't prefer it, but in other countries, a lot of food items are packed. Fine. That we normally don't prefer. We Indians use more of a freshly prepared foods. Fine. And we talk about that there are not only one process where these metals are used. If I talk, these metals are used in variety of things. Like we discussed, iron is used in, not only in buildings, in different articles, the furniture. Similarly, this aluminium which I have taken for you, it is used in making utensils. It is used in making the aircraft body, because you would have seen iron is heavy, but aluminium is lighter. अब घर पे एक aluminium का कढ़ाई हो या aluminium iron का कढ़ाई हो, compare करके देखिएगा, iron कढ़ाई and aluminium कढ़ाई और any of the vessel of same size, aluminium light होता है. So being lighter, aluminium is used in aircraft bodies. इसका कहाँ use होता है? Aircraft की body का structure बनाने के लिए. Fine. Next comes is, वैसे तो जो वायर्स होती है वो कॉपर की होती है, आपको पता है, बट समटाइम्स सम ऑफ द वायर्स आर आल्सो
used or made using aluminium. Next आता है packing of medicines. आपने देखा होगा हमारा जो एक हम मेडिसिन का पैकेट यूज करते हैं जिसमें से हम टैबलेट्स निकालते हैं जिसको हम नॉर्मली टीयर कर लेते हैं. That covering is made up of this aluminium. Fine. Next one is the foil for packing food items. Fine. ये है common uses aluminium के, because similarly all these metals can also be used in variety of things. You just have to keep few in mind. Fine. Moving on further, when we talk about uses of non-metals, कि non-metals के uses कहाँ होते हैं. अब देखिए metal तो हमारी लाइफ में बहुत सारी जगह है और नॉर्मली हम उनसे ज़्यादा familiar हो गए हैं, हमें पता है कि ये है बहुत सारा है. Fine. But non-metals we are using, but we are not much aware कि इसमें कौन सा नॉन मेटल है. फाइन. लाइक हम एंटीसेप्टिक लिक्विड यूज करते हैं, उसमें आयोडीन यूज होता है. क्या यूज होता है? आयोडीन. आयोडीन इज यूज्ड इन एंटीसेप्टिक्स. अब सबको दिवाली पे पटाखे चलाना पसंद है, करेक्ट? उसमें क्या यूज होता है हमारा? सल्फर. The sulphur is used in the firecrackers and also in the gunpowder in the olden days, and now also a little bit, but gunpowder was in gunpowder sulphur is being used. And the next one is vulcanization. This is one term which will be new for you. Vulcanization means जो टायर होते हैं, रबर टायर्स, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए सल्फर का यूज होता है एक प्रोसेस में, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं वल्केनाइजेशन. फाइन. नेक्स्ट वन आता है हमारा फेवरेट कार्बन. फाइन. एंड अमंग कार्बन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन अ लाइफ विच यू यूज are pencils, pencil and eraser. So the pencil is made from graphite. Graphite is what? The carbon only. So that's carbon is also a non-metal. And the next one, the most favorite among all the jewels, stones, that is diamond. And diamond is also what? This non-metal. And which non-metal? Carbon. The diamond is made up of by the joining of carbon atoms only. Fine. The next ones can be the silicon. अब सबको हमारी लाइफ में कितने सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, चाहे वो हमारा मोबाइल हो, लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, हमारा आईपैड हो, कोई भी डिजिटल आइटम, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, हमारा टीवी, इन सब में क्या होता है? देयर आर सम चिप्स. ओके. चिप में क्या होता है? डिजाइन होता है कि कौन से सिस्टम को कैसे फंक्शन करना है, एंड how the things in the electronic will be controlled. अब वो जो chips होती हैं वो बनी होती हैं silicon की. अभी सुना होगा ना, there is a place in which is called as Silicon Valley. Silicon Valley का क्या था? Because that was an area where जहाँ पर ये electronics goods का development, उनका जो प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग और इसका जो इस फील्ड में, इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में बहुत डेवलपमेंट हुआ था, इसीलिए इस एरिया को कहते हैं सिलिकन वैली. फाइन. दैट वाज वन ऑफ द रीजंस. फाइन. सो सिलिकन का क्या यूज है? सिलिकन से बनती हैं चिप्स. हमारे मोबाइल में होती है, हमारे लैपटॉप में होती है, हमारे टीवी में होती है. सो इसका जो चिप्स होती है वो बनी होती है सिलिकन की. ओके. नेक्स्ट आता है नाइट्रोजन. नाइट्रोजन इज वन ऑफ द कॉमन, आपको पता है एयर में इतना सारा नाइट्रोजन है, द हाईएस्ट अमाउंट इज नाइट्रोजन ओनली. बट ये नाइट्रोजन आपको पता है कि ये कहाँ यूज होता है हमारी डेली लाइफ में? जब हम लेज खाते हैं, हम चिप्स खाते हैं, यूड हैव सीन उसमें एयर फिल्ड होती है. दैट पैकेट हैज अ एयर फिल्ड इनसाइड इट. और वो कौन सी गैस होती है? दैट इज बेसिकली नाइट्रोजन. नाइट्रोजन उसके अंदर फिल कर देते हैं ताकि एक तो वो ब्रेक ना हो जाए, सेकेंड दैट विल रिमेन प्रोटेक्टेड एंड उसको प्रॉपरली स्टोर कर पाएंगे, हम ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे. तो यहाँ पर बेसिकली ये उसके प्रोटेक्शन और उसमें पैकिंग में यूज होता है नाइट्रोजन. फाइन. एंड द नेक्स्ट वन इज फॉस्फोरस. फॉस्फोरस, इट्स अ लिटिल बिट लॉन्ग नेम. फॉस्फोरस हम सब घर पे मैच स्टिक यूज करते हैं, छोटे बच्चों को स्पेशली जलाना बहुत पसंद होता है. दिस फॉस्फोरस इज यूज्ड इन मेकिंग मैच बॉक्सेस. हमारे जो मैचेस बनाते हैं ना, उसमें क्या यूज होता है? फॉस्फोरस. यू कैन सी हियर हमारे वुडन स्टिक्स के ऊपर ये जो लगा होता है मटेरियल, दिस इज ओनली फॉस्फोरस. और ये और कहाँ यूज होता है? इन मेकिंग फर्टिलाइजर्स. हम जो प्लांट्स को फर्टिलाइजर्स देते हैं उसमें यूज होता है हमारा फॉस्फोरस. मूविंग ऑन नेक्स्ट, अगर हम बात करें मेटल्स और नॉन मेटल्स की, उनके कॉमन यूजेस हमने कुछ देखे. अब आते हैं एक स्पेशल वैरायटी के मेटल्स जो कहलाते हैं नोबल मेटल्स.
ओके, नोबल मेटल्स क्या होते हैं? वो मेटल्स जो कि लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स है. व्हाट आर दीज? दीज आर लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स. एंड सेकेंड, जब ये किसी से रिएक्ट नहीं कर रहे हैं तो दे डू नॉट लूज देयर लस्टर. रिएक्ट करते तो कोई और कंपाउंड बनाते और अपना लस्टर लूज कर जाते. तो ये क्या करते हैं, अपना, जैसे हम बोलते हैं लाइफ में नोबल पर्सन्स कौन होते हैं? जो अपना डिग्निटी मेंटेन करते हैं, किसी से बिना मतलब झगड़ा नहीं करते हैं, फालतू आर्ग्यूमेंट नहीं करते हैं, एंड दैट्स हाउ दे मेंटेन देयर डिग्निटी. सो सिमिलरली नोबल मेटल्स भी ऐसे ही मेटल्स हैं जो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं. दे डू नॉट लूज देयर शाइन एंड दे रिटेन देयर लस्टर और शाइन फॉर लॉन्ग टाइम. जैसे अभी याद आई गया होगा आपको, गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर, जो कि हम हमारी लाइफ में लाइक इन ज्वेलरी यूज किया जाता है. फाइन. और सेकेंडली इनका क्या फीचर है कि दे डू नॉट रिएक्ट विद द एयर. एयर में किसी गैसेस से रिएक्ट नहीं करेंगे इजीली. दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, दे डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स, दे डू नॉट रिएक्ट विद बेसिस और सम अदर सब्सटेंसेस. ओके, ये रिएक्ट करते हैं बट स्पेशल कंडीशंस के अंडर. फाइन. जनरल नॉर्मल एनवायरनमेंट में नहीं रिएक्ट करेंगे, रूम टेम्परेचर पर नहीं रिएक्ट करेंगे. फाइन. Now, where they are used? हमें पता है in making jewelry. प्लैटिनम यूज होता है डेंटिस्ट्री में. कैसे? You just have a look. गोल्ड का ज्वेलरी सबको बहुत पसंद होता है. एंड दिस इज डेंटिस्ट्री, मतलब डेंटिस्ट जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं उसमें यूज होता है प्लैटिनम. बिकॉज आपको पता है कि दैट विल बी कॉन्स्टेंटली इन टच विद द एयर एंड द वाटर. अगर प्लैटिनम किसी चीज से रिएक्ट करता तो डिफरेंट कंपाउंड्स बनाता, and that will not be good for the instrument which will constantly go in our mouth. तो ये बने होते हैं प्लैटिनम के, और प्लैटिनम के बने होने से ये easily react नहीं करते हैं and they retain their shine and their properties properly. Fine. And they are also used in wires. अगर हम बात करें सिल्वर और गोल्ड की वायर्स बनती हैं. You are aware कि सिल्वर is the best conductor, but हमारे पास इतना ज़्यादा है नहीं, सो हम कॉपर को यूज़ करते हैं. बट वाइल मेकिंग ज्वेलरी पहले वायर्स बना लिए जाते हैं, फिर उसको अलग अलग डिज़ाइन दे के उस तरह से बनाया जाता है. फाइन. सो ये हो गए हमारे नोबल मेटल्स एंड देयर यूजेस. फाइन. ओके, नेक्स्ट कम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन, दैट इज एलॉयज. अब एलॉयज क्या होते हैं? जो हमारी नॉर्मल लाइफ में एलॉय हम यूज़ करते हैं वो है हमारा स्टील. हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्टील की बनी है. हैंडल्स, बहुत सारा कुकवेयर, बहुत सारी चीज़ें जो हमारे आसपास, स्पेशली डोर के हैंडल्स जो हम ओपन क्लोज करते हैं, लैच यूज़ करते हैं, दैट मोस्टली कम्स विद द स्टील. फाइन. एंड बट ये एलॉयज होते क्या हैं? जब हम किसी एलॉय की बात करें तो एलॉय इज ए होमोजेनस मिक्सचर. एलॉय इज ए होमोजेनस मिक्सचर. अब होमोजेनस मिक्सचर का क्या मतलब है? एक ऐसा मिक्सचर जिसका कॉम्पोजिशन पूरी जितना भी वॉल्यूम में वो बनाया गया होगा, अगर वो 1 kg, 10 kg, हंड्रेड्स ऑफ kg उसको हमने प्रिपेयर किया है, उस हंड्रेड्स ऑफ kg में से आप कहीं से भी सैंपल लेके चेक कर लीजिए, उसका कॉम्पोजिशन सेम होना चाहिए. Okay, that's how it becomes a homogeneous mixture. Okay, अगर हम हमारी एयर की बात करें, एयर इज ऑल्सो ए मिक्सचर, बट एयर में कॉम्पोजिशन सबका सेम नहीं होता है हर जगह. कहीं पे ऑक्सीजन ज़्यादा है, कहीं कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, कहीं और कोई गैसेस ज़्यादा है. तो बेसिकली यहाँ पर हमारा जो एलॉय है वो एक होमोजेनस मिक्सचर है. दैट मीन्स उसका कॉम्पोजिशन पूरे सोल्यूशन, पूरे मिक्सचर में सेम होगा. सो इसी तरह का एलॉय है हमारा स्टील, जो कि हम कॉमनली यूज करते हैं. बट होमोजेनस मिक्सचर के अलावा इसमें ये होमोजेनस मिक्सचर होता किसका है? देयर कैन बी 2 or more मेटल्स. हम मेटल का मिक्सचर यूज कर सकते हैं एलॉय को बनाने में, या हम एक मेटल और एक नॉन मेटल का, या 2 मेटल 2 नॉन मेटल, या 2 मेटल 1 नॉन मेटल. मतलब इट कैन बी अ मिक्सचर ऑफ मेटल, it can be a mixture of metal and non-metal. Fine. एंड अब एलॉय बनाने का फायदा क्या है? हम क्या फायदा है कि हम आयरन नहीं यूज करते, स्टील यूज करते? आई एम श्योर यू ऑल नोज दिस फैक्ट. फाइन. आपको पता है कि जो हमारा आयरन होता है दैट रिएक्ट वेरी इजीली विद द थिंग्स अवेलेबल अराउंड अस. बहुत जल्दी इसका रस्टिंग हो जाता है, इसीलिए हम यूज करते हैं स्टील, जो कि कॉमनली जनरली रिएक्ट नहीं करता है चीज़ों से. तो एलॉयज के बेनिफिट क्या है? फर्स्ट, they are stronger. Second, they are harder. And third, resistant to corrosion.
ये जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं आसपास की चीज़ों से। लेट्स मूव टू नेक्स्ट। जो हमारे आसपास सबसे कॉमनली प्रेजेंट अलॉयज हैं वो कौन से हैं? फर्स्ट, ये इट इज़ लिटिल बिट मेमोराइजेशन पार्ट, बट आई हैव ट्राइड टू मेक इट मोर ईजी टू रिमेंबर, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ थोड़ा सा मेमोरी में रखनी है आप सबको कि कौन कहाँ यूज़ हो रहा है बेसिकली। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिससे जो बहुत सारी कॉमन चीज़ों में यूज़ होते हैं, कॉमन चीज़ों को बनाने में, जैसे एल निको, लाइक दिस वर्ड एल, that means from aluminium, Ni that is from nickel and Co from cobalt। तो इन तीनों को मिलके बनता है एल निको। ओके, और इसका यूज क्या होता है? परमानेंट मैग्नेट्स बनाने में। ओके, ध्यान रखिएगा, हम जो नॉर्मली नेल से या आयरन ऑब्जेक्ट से बनाते हैं वो उतने स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स और परमानेंट मैग्नेट्स नहीं बनते हैं। दे लूज देयर मैग्नेटिक पावर आफ्टर सम टाइम। ओके, अगर नेक्स्ट बात करें हम ब्रास की। ओके, ब्रास में क्या होता है? ब्रास किसका बना होता है? ये बहुत पुराने टाइम से ये अलॉय बनता आ रहा है। ओके, इसमें हम यूज करते थे कॉपर और जिंक का, और इसके क्या चीजें बनती थी? इसके बनते थे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, इसके बनते थे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे ये हमारा जो भी आप इसे कहते हैं, आई डोंट नो इसे क्या कहते हैं, इफ यू नो इट राइट डाउन। ओके, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इससे बनते थे, ब्रास से। फाइन, अगर हम बात करें जर्मन सिल्वर की, जर्मन सिल्वर इसको हम क्यों कहा जाता है? बिकॉज इसका जो लुक होता है वो सिल्वरी अपीयरेंस होता है, इसका अपीयरेंस जो होता है, लुक जो होता है वो सिल्वर जैसा होता है। और ये बनता किससे है कि इट इज यूज्ड इन फ्रॉम मेड फ्रॉम कॉपर, निकल एंड जिंक। ध्यान रखिए कि देखो, कॉपर मैक्सिमम में यूज हो रहा है। ओके, कॉपर ब्रास में भी यूज होता था, कॉपर जर्मन सिल्वर में भी यूज होता था, और जिंक भी दोनों में यूज हो रहा है। सो वेल रिमेंबरिंग आप इजीली याद कर सकते हैं। फाइन, और ये बनता, ये जर्मन सिल्वर किस में यूज होता है? आजकल इसका ज्वेलरी भी आने लग गया, जो हम आर्टिफिशियल ज्वेलरी यूज करते हैं ना, विच इज नॉट कोटेड ज्वेलरी, जो सिल्वर और ऑर्नामेंट्स पे कोटिंग चढ़ा दी जाती है गोल्ड की और प्लैटिनम की, वो नहीं। नॉर्मल अदर यूजिंग दिस जर्मन सिल्वर ऑल्सो नाउअडेज आर्टिफिशियल ज्वेलरी इज मेड एंड विच इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग बेसिकली। इसमें स्ट्रेंथ अच्छा होता है। फाइन, नेक्स्ट आता है, और इसके अलावा कहाँ होता है? मेकिंग बेल्स और गोंग्स, इनमें यूज होते हैं। गोंग होता है क्या मतलब हमारी लैब्स में एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको बोलते हैं गोंग। ओके, नेक्स्ट आता है ड्यूरा एल्यूमिन। ये किससे बना है? एल्यूमिनियम से, कॉपर से, मैंगनीज से और मैग्नीशियम से, इन सब से मिलकर बनता है ड्यूरा एल्यूमिन। फाइन, इससे क्या बनती है? कॉइन्स बनती है। और ये क्या होता है? सेकंड, ये बेस मेटल होता है फॉर सिल्वर कोटेड कटलरी, कतली मीन्स जो किचन वेयर हम यूज करते हैं, या कुछ जो सिल्वर की कोटिंग वाली जो चीजें होती है, उसके नीचे जो बेस मेटल होता है, बेस अलॉय है बेसिकली, ये है ड्यूरा एल्यूमिन। फाइन, जो नेक्स्ट आता है, दैट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड आई थिंक इन आवर डेली लाइफ, दैट इज द स्टील। फाइन, स्टील किसका बना है? अब यहाँ पर एक डिफरेंस आ जाता है कि स्टील बना है हमारे आयरन से, जो कि मोस्ट वेल नोन मेटल है। फाइन, एंड सेकंड आता है, ये सेकंड वेरी वेल नोन नॉन मेटल से, दैट इज कार्बन से। ध्यान रखिएगा, ये किस किस से बना है? एक तो ये बना है आयरन से, और दूसरा उसमें यूज हुआ है हमारा कार्बन। इन दोनों के मिलाने से बनता है स्टील, एंड विच इज सो स्ट्रॉन्ग। फाइन, तो आप देखते हैं इसको हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। हम इसको एरोप्लेन के पार्ट्स बनाने में यूज करते हैं, व्हीकल्स के पार्ट्स में यूज करते हैं, बिकॉज यू आर अवेयर दैट हमने कहा अलॉय से क्या बन रहा है? स्ट्रॉन्गर बन रहा है, ड्यूरेबल बन रहा है, रेजिस्टेंट टू कोरोजन बन रहा है, तो वो जंग भी नहीं खाएगा। इससे क्या होगा? व्हीकल्स का लाइफ लॉन्ग हो जाएगा। ओके, ज्यादा ड्यूरेबल बनेंगी चीजें। नेक्स्ट आता है सोल्डर, कि जो हम सोल्डरिंग आयरन यूज करते हैं चीज़ों को चिपकाने के लिए स्पेशली। ओके, उसमें क्या यूज होता है हमारा? जैसे यहाँ पर मैंने लाइक आई हैव यूज्ड दिस इमेज, इफ यू हैव सीन कैन सी इट क्लियरली हियर, यू कैन सी शोल्डरिंग। जो ये पर्सन दिख रहे हो, आपने देखा होगा काफ़ी लोग जोड़ते हैं, विंडोज़ के पैन जोड़ रहे होते हैं और बहुत ब्राइट सा लाइट निकल रहा होता है उसमें से। बेसिकली वो क्या है? सोल्डरिंग कर रहे होते हैं। और सोल्डरिंग प्रोसेस में क्या यूज़ होता है? सोल्डर वायर यूज़ होता है। और वो सोल्डर वायर किसका बना होता है? वो बना होता है टिन और लेड का। ओके, अब इसमें क्या है? ये एक ऐसा अलॉय है जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो है,
और लो होने से ही हम इसको इजीली मेल्ट कर पाते हैं। मेल्ट करते ही जैसे इसमें दो चीज़ें जोड़ेंगे, जुड़ने के बाद ये जैसे ही कूल डाउन होगा वैसे ही सॉलिड बन जाएगा और वो दो चीज़ें आपस में जुड़ जाएंगी। फाइन, सो दैट्स व्हाई इट इज़ यूज्ड इन जॉइनिंग मेटल पार्ट्स, चाहे वो हमारे आयरन के ग्रिल्स हो, डोर्स को ज्वाइन करना हो, चाहे वो रेल्स को ज्वाइन करना हो, इसमें सब में ये सोल्डरिंग ये प्रोसेस यूज होता है। फाइन, नेक्स्ट आता है हमारा ब्रॉन्ज। ओके, हमारे ब्रॉन्ज में क्या यूज होता है? कॉपर एंड टिन, और ये बनते, इससे क्या बनते हैं? हमारे स्टैचूज बनते हैं। ब्रॉन्ज के स्टैचूज देखे होंगे आपने, जो काफी टाइम एक ओल्ड से पर्सन को अर्थ उठाए हुए दिखाते हैं ना, लाइक समवट लाइक दैट स्टैचूज आर मेड एंड कॉइन्स आर मेड, ओके, फ्रॉम ब्रॉन्ज। ओके, ट्रॉफीज आर ऑल्सो मेड। ओके, एंड ये हमारी मेडिसिन कॉइन्स भी यूज होती हैं जो कि बनते हैं इससे, ब्रॉन्ज से। फाइन, मूविंग ऑन, नेक्स्ट आता है हमारा, ये थे हमारे अलॉयज के यूजेस और कॉमन अलॉयज जो कि हमारी लाइफ में यूज होते हैं। नेक्स्ट आता है कोरोजन ऑफ मेटल्स। हमने कहा कि हम अलॉयज बनाते हैं क्योंकि हम कोरोजन को प्रिवेंट करना चाहते हैं, मेटल्स को ज्यादा ड्यूरेबल, स्ट्रॉन्गर बनाना चाहते हैं। बट ये कोरोजन होता क्या है? सो व्हाट इज कोरोजन? आपने कभी कभी ऐसा देखा होगा कि इट इज सिल्वर का ये पर्स बना है, ओके, इट्स एंटीक पीस। फाइन, बट अगर आप देखोगे कोई भी सिल्वर आर्टिकल देखो, आफ्टर इट्स प्रोलॉन्ग यूज ये थोड़ा सा ब्लैकिश हो जाता है, थोड़ा एक ब्लैकिश लेयर चीज़ों पे आ जाती है। सेकेंड, इफ यू सी फर्दर, अगर हम दूसरे मेटल्स की बात करें, जैसे हमारा कॉपर है या हमारे दूसरे मेटल्स हैं, तो उन पे भी कुछ ना कुछ लेयरिंग आ जाती है। अगर आप अपने घर में भी जो दूसरे मेटल्स हैं उनको भी अगर आप यूज ना करें चीज़ों को, तो उनके ऊपर एक लेयरिंग चढ़ जाती है। दैट इज व्हाट दिस हैपेंस बिकॉज कोरोजन में क्या होता है, दिस मेटल्स गेट ईटन अप और दिस मेटल्स रिएक्ट विद द एयर एंड मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर। ओके, ये क्या करते हैं, जो हमारे आसपास का एयर है और उसमें जो मॉइस्चर प्रेजेंट है, वाटर का कंटेंट प्रेजेंट है। व्हाट इज मॉइस्चर? द वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एयर। जो एयर के अंदर वाटर वेपर है वो कहलाता है मॉइस्चर। ह्यूमिड एयर, ह्यूमिडिटी का अमाउंट जो हम कहते हैं। फाइन, ये उससे रिएक्ट, मेटल्स एयर और वाटर से रिएक्ट करते हैं और कोरोड होते हैं, और इसमें क्या होता है, मेटल्स स्लोली ब्रेक डाउन होता जाता है। ओके, बिकॉज इट डजंट रिमेन एनी मोर मेटल, मेटल से वो मेटल के ऑक्साइड्स बना लेता है, तो इस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब हम इसको कैसे ऑब्जर्व करते हैं? वी कैन सी द सिल्वर आर्टिकल्स टर्निंग ब्लैक, वी कैन ऑल्सो सी कॉपर वेसल्स टर्निंग ग्रीनिश। अगर आप देखोगे ना, जैसे आपके घर में कोई कॉपर की चीज़ें हैं, नॉर्मली हमारे वो एक पुराने स्टाइल में दिए आते थे, मतलब दीपक आता था, दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ दैट कॉपर। उसको भी अगर आप लंबे टाइम थोड़ा यूज ना करें, नेक्स्ट टाइम व्हेन यू यूज इट, आप देखेंगे थोड़ा ग्रीनिश लेयर आ जाता है। सेम यू कैन सी हियर, इफ यू कैन ऑब्जर्व इट हियर, तो यहाँ पर भी ऐसा ही है। फाइन, एंड नाउ नेक्स्ट कम्स इज व्हाट इज रस्टिंग। रस्टिंग क्या होता है? ओके, कभी कभी आपने ऐसी चीजें देखी है, एक पुरानी सी गाड़ी जो काफी टाइम से पड़ी हुई है कहीं बाहर, धूप में, बारिश में, उसका हाल ऐसा हो जाता है। फाइन, नेक्स्ट कम्स, इसके अगर आपने चेन्स देखी हो, इफ यू हैव विजिटेड सम टाइम ओल्ड मॉन्यूमेंट्स जिसमें बहुत पुराने टाइम से वो चेन यूज की गई थी, तो दे लुक समवॉट लाइक दीज थिंग्स। सो रस्टिंग क्या है? बेसिकली रस्टिंग इज नथिंग बट द कोरोजन ऑफ आयरन। आयरन का जो कोरोजन होता है उसको एक स्पेसिफिक टर्म दे दिया गया है जिसे हम कहते हैं रस्टिंग। ओके, और इसमें होता क्या है? सिमिलर, जैसा बाकी मेटल्स रिएक्ट करते हैं एयर और वाटर के साथ, यहाँ पर रस्टिंग प्रोसेस में भी आयरन रिएक्ट करता है एयर और वाटर के साथ, और इसमें बनता क्या है? इसमें बनता है एक रेडिश ब्राउन सब्सटेंस। इसलिए आपने देखा होगा ना, जिन चीज़ों पर रस्ट हो जाती है, इफ यू टच देम एंड यू सी ऑन योर फिंगर, आप उसको फील कर पाते हैं पाउडर को, और सेकेंडली रेडिश ब्राउन कलर आ जाता है आपकी फिंगर पर, एंड दैट इज कॉल्ड रस्ट। ये रस्ट होता क्या है? दिस रस्ट इज नथिंग बट आयरन ऑक्साइड। ये क्या है हमारा रस्ट? रस्ट है हमारा आयरन ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3.NH2O। इसका मतलब क्या होता है कि इस आयरन ऑक्साइड के साथ कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स अटैच हैं। ओके, दैट यू विल स्टडी इन हायर क्लासेस कि ये कैसे होते हैं और इनको क्या कहते हैं। फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर दैट रस्टिंग प्रोसेस में रस्ट बनता है। रस्ट क्या है? रस्ट है आयरन ऑक्साइड, एंड आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है? Fe2O3। इस 2 को हम थोड़ा सा स्मॉल लिखते हैं। ओके, रिमेंबर मैंने थोड़ा सा बड़ा लिख दिया है यहाँ पर, Fe2O
3 है, छोटा लिखते हैं और नीचे लिखते हैं, फाइन। ओके, मूविंग ऑन फर्दर कि अब रस्टिंग होता है, ठीक है, आयरन तो इतना इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर यूज होता है, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स में, बिल्डिंग में यूज होता है, ब्रिजेस में यूज होता है, बहुत सारी चीजों में यूज होता है। तो अब ये रस्टिंग के लिए, रस्टिंग होता किन किन कंडीशन में है, एंड सेकेंड कि हाउ कैन वी प्रिवेंट रस्टिंग, कि रस्टिंग को हम कैसे रोक सकते हैं। सो देयर इज फर्स्ट थिंग कि कंडीशंस कौन से रिक्वायर्ड है। सो कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं वाटर और मॉइस्चर, एयर में जो मॉइस्चर प्रेजेंट है, और सेकेंड एयर इज रिक्वायर्ड। ये दो कंडीशन होगी तो रस्टिंग स्टार्ट हो जाएगा आयरन ऑब्जेक्ट्स का, फाइन। अब उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास कुछ कुछ टेक्निक्स हैं जो ओवर द टाइम डेवलप की गई हैं। फर्स्ट आता है प्लेटिंग विद क्रोमियम। हम उसको प्लेटिंग कर सकते हैं, क्रोमियम का कोटिंग चढ़ा सकते हैं उसके ऊपर, फाइन। नेक्स्ट हम कर सकते हैं हमारा सेकेंड मेकिंग एलॉयज। हम स्टील के जैसे अलॉयज बना सकते हैं या ड्यूरा एलिमेंट जैसे अलॉयज बना सकते हैं, ताकि हम मेटल को डायरेक्टली नहीं यूज करके उसके अलॉयज को यूज करें, फाइन। नेक्स्ट आ जाता है गैल्वेनाइजेशन। नाउ व्हाट इज दिस गैल्वेनाइजेशन? दिस इज अगेन अ टर्म लाइक द वल्केनाइजेशन, ओके। गैल्वेनाइजेशन डाल रखिएगा। गैल्वेनाइजेशन क्या है? इसमें हम क्या करते हैं कि आयरन और स्टील के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर हम एक जिंक का कोटिंग चढ़ा देते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, जिंक का कोटिंग चढ़ा देते हैं, मतलब जिंक का पेंट कर देते हैं, समझ लीजिए, ओके। तो जिंक का हम एक कोटिंग चढ़ा देते हैं। उससे क्या होगा कि आयरन डायरेक्टली एयर के कांटेक्ट में नहीं होगा, और जो जिंक है वो आयरन से कम रिएक्टिव है। तो जिंक क्या करेगा, ज्यादा जल्दी रिएक्ट नहीं करेगा और आयरन के जो नीचे की लेयर्स है उनको प्रोटेक्टेड रखेगा रस्ट होने से, फाइन। सो दैट्स हाउ गैल्वेनाइजेशन इज डन, फाइन। इसके लिए हम क्या करते हैं, इट्स अ केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होता है जिसमें जिंक का कोटिंग चढ़ा दिया जाता है, एक कवरिंग चढ़ा दिया जाता है। सिमिलर टू दिस हम जो बोल रहे हैं ना क्रोमियम की कोटिंग के जैसा ही होता है। और सेकंड आप देख सकते हैं यहाँ पर लास्ट मेथड है हमारा पेंटिंग एंड ग्रीसिंग। हाँ, पेंट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को, ताकि पेंट का जो कोटिंग है वो भी आयरन को रिएक्ट नहीं करने देगा एनवायरमेंट की चीज़ों से। तो उससे भी क्या होगा, हमारा आयरन का जो सब्सटेंस है, ऑब्जेक्ट है, वो प्रोटेक्टेड रहेगा, फाइन। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने वाटर की पाइप को पेंट कर दिया है। सेकंड आप क्या कर सकते हैं, ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे जो डोर्स के जो होते हैं ना पैन, हमारा एल्बोज जिससे जॉइंट रहता है, हिंज जो हम बोलते हैं, हिंज को हम कई बार ऑयल देते हैं, ग्रीसिंग देते हैं ताकि वो आवाज़ ना करे। वो आवाज़ क्यों करने लग जाते हैं बेसिकली, बिकॉज दे स्टार्ट रस्टिंग, फाइन। और उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ग्रीसिंग या ऑयलिंग दे सकते हैं। इट कैन बी डन ऑन अदर ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो, फाइन। एंड यू कैन सी हियर दिस वन इज द वन जिसको हमने क्रोमियम का कोटिंग दे दिया हुआ है। आप देखेंगे हमारे जो बहुत सारे व्हीकल्स होते हैं, कार के पार्ट आप देख लीजिए, कार का हैंडल देखिए, स्टीयरिंग देखिए, और या फिर सिंबल्स देखिए, you will find them silvery because उनमें क्या होता है कि उनको हम क्रोमियम का कोटिंग दे देते हैं। और कोटिंग देने से क्या होगा, दो चीजें, एक तो दिखेंगे अच्छे, एंड सेकेंड कि वो आयरन जो उसके नीचे है वो जल्दी रिएक्ट नहीं करेगा एनवायरमेंटल ऑब्जेक्ट से, और सॉरी एयर से और हमारे मॉइस्चर से, फाइन। तो वो प्रोटेक्टेड रहेगा, रस्टिंग नहीं होगा इजीली, फाइन। सो होप यू वुड हैव अंडरस्टूड दीज ऑल corrosion, rusting, and what are the conditions required and ways to prevent the rusting, fine. And whatever we have done previously also, fine. Okay, thank you for watching it, viewers. That's it for today. In the next video we're going to start the next chapter. Till then, take care. If you have liked the video, you can subscribe it to the channel, you can share it with your friends, you can share it with your family members, and if you still have left any question, please write to me in the comments. I will be happy to answer them. Thank you. Take care. Bye.